اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، معاملہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں؟ اور پھر پہلے تو صرف یہ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھ رہی تھی اور اس کو کہا جا رہا تھا، اور پھر الزام لگایا گیا کہ یہ سارے کے سارے یوٹیوبرس کا کام ہے، یہ جو باہر بیٹھے لوگ ہیں ان کا کام ہے، اوورسیز پاکستانی جو باہر ہم جیسے کام کر رہے ہیں ان کا کام ہے، یہ مسائل پیدا کر رہے ہیں اور اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن مراد سعید صاحب بہت ہی عمران خان صاحب کے معتمد ہیں اور بہت ہی قابل بھروسہ، اور عمران خان صاحب کو موت کے منہ سے نکالنے والا بندہ ہے، وہ نوجوان ہے، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے موت کے منہ سے نکالا جب جوڈیشل کمپلیکس ہوا تھا، اسلام آباد میں عمران خان کی حاضری تھی اور ان کو لایا جا رہا تھا اور عدالت میں ان کو کہا تھا، عدالت میں ان کی پیشی تھی، اور جو اس دن جس طریقے سے مراد سعید نے اور انہوں نے ایک ٹیم بنائی اور ٹیم بنا کر جس طریقے سے عمران خان کو اس دن ان کی حفاظت کی، کیونکہ اگر عمران خان صاحب گاڑی سے نیچے اترتے تو اس بات کا بہت زیادہ خطرہ تھا، خدشہ تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور وہ خوش قسمتی کہ اس دن رش اتنا تھا کہ ان کو گاڑی سے نکلنے کا موقع بھی نہیں ملا، اور مراد سعید ان کی ٹیم جو ہے وہ بھی انہوں نے گاڑی کو بالکل اپنے لیا ہوا تھا حصار میں، اور پھر جج صاحب نے ایک آرڈر کر دیا کہ وہ نہیں آ سکتے تو آپ حاضری لگوا لیں گاڑی سے ہی، تو پھر ان کی گاڑی میں حاضری لگوائی گئی تھی۔ شبلی فراز صاحب جو ہیں ان کو اس دن اٹھا لیا گیا تھا، پھر وہ فائل بھی چوری کر لی گئی تھی، وہ فائل ہی کوئی اٹھا کر لے گیا تھا، بیرسٹر گوہر سے کھینچ کر لے گیا تھا، تو وہ بڑا پر اسرار اور خطرناک دن تھا۔ تو مراد سعید صاحب وہ ہیں، اور آج تک مراد سعید صاحب جو ہیں وہ روپوش بھی ہیں، کیونکہ اگر مراد سعید کہیں بھی نظر آ گئے اور ہتھے چڑھ گئے، خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم بھی یہ کہیں گے مراد سعید سے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں اپنے آپ کو بہت ہی اپنے آپ کو محفوظ بنائیں، سیکورٹی کا خاص بندوبست کریں، اور اپنی لوکیشن بالکل بھی کسی سے شیئر نہ کریں، کیونکہ حالات ایسے ہیں۔ مراد سعید صاحب نے کل وہ بھی بہت پر امید تھے کہ سہیل آفریدی صاحب آئیں گے تو حالات و واقعات ٹھیک ہو جائیں گے، گنڈا پور صاحب اس طریقے سے کام نہیں کر رہے، تو کل انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قید تنہائی میں ڈالنے سے قبل وکلاء اراکین اسمبلی اور پارٹی قیادت کے لیے یہ احکامات تھے کہ عدالتوں کے باہر دھرنا دیں جب تک انصاف نہیں ملتا۔ ان سب کو جھنجھوڑ کر یاد کرا چکا ہوں کہ وکلا کے نام بھی سخت پیغام تھا، اور کیوں نہ ہوتا پارٹی عہدوں سے لے کر اسمبلی ٹکٹ اور بار الیکشن تک عمران خان کے نام پر یہ الیکشن لڑتے اور لڑے جاتے ہیں، لیکن خان صاحب کے احکامات کے باوجود عدالت کے باہر مستقل بمائے اراکین اسمبلی دھرنا نہیں دیا جا سکتا۔ ووٹ بھی لیتے ہیں، سیٹیں بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے وہ نہ عدالت کے سامنے دھرنا دے سکتے ہیں، نہ اور یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر انہوں نے کہا کہ کبھی کہا جاتا ہے کہ رمضان آ گیا، کبھی کہتے ہیں کہ بارش آ گئی، اور کبھی کہتے ہیں کہ گرمی ہو گئی۔ حملے، آپریشن، بدلتے ہوئی بین الاقوامی حالات، پیٹرول کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بہترین اس وقت ہے کہ تحریک چلایا جائے، عوام کو موبلائز کیا جائے، عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور عمران خان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، عمران خان کے ساتھ ساتھ عوام، پاکستان کے عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ عمران خان کے نمائندے ہیں، عمران خان قید ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہیں، عوام منتظر ہے، لیکن قیادت جو ہے، اور بالکل صرف صوبہ نہیں بلکہ ملک بند کرنے کا پلان ہونا چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے، کیونکہ پرامن احتجاج، امن ہڑتال سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پوری دنیا میں یہ رائج ہے کہ آپ احتجاج کریں پرامن طور پر۔ آپ نے دیکھا اسرائیل ایران امریکہ جنگ ہوئی، پوری دنیا میں امریکہ میں 8 ملین لوگ ایک دن نکلے، 80 لاکھ اس جنگ کے خلاف 8 ملین لوگ نکلے۔ اس طرح یورپ میں احتجاج ہوا اور اسرائیل کے اندر احتجاج ہوا، تو پاکستان میں احتجاج کیوں نہیں کر سکتے جبکہ ایک بہت بڑی تعداد سپورٹ کی موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا، انہوں نے کہتے ہیں کہ عمران خان
जो है वो इमरान खान की सेहत के मामले पर मुतहर्रिक होने की दरख्वास्त भी की। ईवानों से इस्तीफ़ों के ज़रिए हुकूमत से लेजिटिमेसी वापस लेने के लिए सबसे पहले अपने इस्तीफ़े की पेशकश भी मैं कर चुका हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान की असीरी के ज़िम्मेदारान से में से कोई फ़र्द नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर बरसरे पैकार आसिम मुनीर कानूनी, गैर कानूनी तौर पर उसके मातहत आने वाले इदारे और उसके इशारों पर नाचने वाली सियासी कुव्वतें हैं। और मगर क्या इमरान खान अपनी ज़ात के लिए मुक़य्यद है? क्या वो अपनी ज़ात की वजह से, क्या अपने मफ़ाद के लिए वजह कैद है? और उसकी रिहाई के लिए अपनी पूरी कुव्वत से कोशिश करना भी किसी का फ़र्ज़ नहीं है? वो सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप कोशिश करें और तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है, वो महीनों बाद एक बैठक मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला खुद कर सकती है। सीएम जलसे का ऐलान कर सकते हैं, फिर मुलतवी भी खुद कर सकते हैं। अरकान असम्बली शादियों और दावतों में मुखालफिन के साथ बैठने का फैसला भी खुद कर सकते हैं और मार्को पोलो बनकर दुनिया के चक्कर लगाने का फैसला भी खुद कर सकते हैं। सियासी कमेटी खुद को मुहिब वतन साबित करने के लिए इमरजेंसी इजलास बुला सकती है, तंजीमी ओहदों के नए नए नोटिफिकेशन कर सकती है, सूबाई हुकूमत फार्म 47 वजीर आजम और सदर के साथ बैठ सकती है, कोर कमांडर हाउस का रुख कर सकती है। लेकिन जब इमरान खान का सवाल हो तो सियासी कमेटी का जवाब होता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इस मामले को देखेगी। उनका जवाब होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इसको देखे और क़यादत कहती है कि इमरान खान साहब की फैमिली देखे और फिर बात आ जाती है सीएम पर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पे और यही सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह खेलते रहते हैं। और तो जब सारे फैसले अपने तौर पर किए जा सकते हैं, तो फिर तहरीक का फैसला क्यों नहीं? महज़ इसके लिए इमरान खान की हिदायत दरकार क्यों है? और जहाँ इमरान खान की हिदायत मुयस्सर हैं, वहाँ हीले बेशुमार हैं। मान लेते हैं कि मंज़िल एक है, लेकिन तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। तो एक दिन के नोटिस पर आप सब एक छत के नीचे बैठकर मुश्तरका इजलास बुलाकर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी तो हो सकता है। आप क्यों नहीं ये सब कुछ करते? और जल्द उन्होंने कहा कि चलो ये भी मान लेते हैं कि ज़्यादातर तहरीक के हक़ में तो कच्चे धागे तोड़ने के लिए इजलास को लाइव नशर कीजिए। वैसे भी कौन-सा उसमें एटम बम का फ़ॉर्मूला डिस्कस होता है। तो जो भी रुकावट होगी कौम और खुद एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका भी एहतिसाब कर लेगी। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल कमेटी का इजलास बुलाएँ सबके सामने और उसको ओपन रखें और उसमें डिस्कस करें। पता चल जाएगा कि सियासी कमेटी में, पॉलिटिकल कमेटी में कौन इमरान लिए लेंगे तैयार है, कौन मुखालफत कर रहा है और पता चल जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट के कौन से मोहरे हैं अंदर बैठे और कौन तो कौन खुद ब खुद ही हिसाब कर लेगी। तो उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए और फिर ये कि हमें तो ग्राउंड रियलिटी नहीं मालूम ना, बस मशवरे दे दिए क्योंकि खान साहब की बीमारी के वक़्त मैंने एक वॉइस नोट में वो तमाम तजावीज़ दोहराई जो मैं क़यादत को बारहा भेज चुका था और ना ही खान साहब के लिए कुछ करने के बजाय मुझे क़यादत और सूबाई हुकूमत ने पैगाम भिजवाया कि आपके एक वॉइस तो इर्रिवर्सिबल पहली मर्तबा नहीं हुआ। यानी वो कह रहे हैं कि जनाब ये मामला जो है, ये सिर्फ़ इतना सादा नहीं है बल्कि गड़बड़ और है और सारा मलबा मुझ पे डालने की कोशिश की गई कि आपके वॉइस नोट ने बहुत नुकसान पहुँचाया है तहरीक को। तो उन्होंने कहा कि 3 साल बहुत लंबा अरसा होता है, वो भी नाहक असीरी और इमरान खान जैसे लीडर का। 4 साल मुझे हो गए, पहले दरबदर और फिर मुस्तकिल और फिर रूपोशी भी ऐसी कि कोई एक हफ्ता भी ना गुजार सके। और आज उन्होंने कहा कि सिर्फ मिल बैठकर एक जिहद मुसलसल की गुजारिश कर रहा हूँ। अगर नहीं हो रहा तो आपसे तो जैसा आप हमारे बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते, हम आपकी गफलत का बोझ नहीं उठा सकते फिर। और अगली बात जो उन्होंने बड़ी कही है, उन्होंने कहा और जो कर्नल से मिलकर एक दूसरे को मशवरे देते हैं कि खान तो जेल में ही रहेगा और मुराद सईद तो पागल है, ना अपनी परवाह ना किसी और की, वो तो जब भी नजर आया मारा जाएगा, अपनी जिंदगी क्यों खराब करते हो? इतना कहूंगा कि अल्लाह आपको मजीद आसानियां दे, लेकिन हमारे मकसद हमारी जिद्दोजहद
और हमारी ज़िंदगियों की कीमत पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं कोई फ़ैसला कीजिए। ये है जनाब मुराद सईद साहब का एक ट्वीट और मुराद सईद साहब की जो गुफ्तगू है और जो उन्होंने कहा, ये 100% दुरुस्त है। और उसकी वजह ये है कि इतनी बड़ी कुव्वत है आपके पास और मजमूई तौर पर 80 एमएनए आपके पास हैं, सेनेट में आपकी भरपूर नुमाइंदगी है, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, पंजाब असम्बली में 100 से ज़्यादा एमपीएज़ हैं और टिकट होल्डर्स आपके बेशुमार हैं, ओहदेदारान हैं। तो क्या वजह है कि अवाम तैयार हैं, अवाम निकलना चाहते हैं और क्या वजह है कि आप ना ही पार्लियामेंट में एहतजाज करते हैं, ना खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इसका डिस्कशन होती है, ना पंजाब असम्बली में एहतजाज होता है, ना सिंध में एहतजाज होता है और ना ही आपका इस्लामाबाद में एहतजाज होता है, कहीं भी एहतजाज नहीं हो रहा। ना आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे पेशी के वक़्त जाते हैं, ना आप लाहौर में जब पेशियाँ होती हैं, जो बाकी लोग हैं उनकी पेशियों पे जाते हैं और ना ही आप अडयाला जेल जाते हैं, तो माजरा क्या है? तो इसलिए ये कहानियाँ जो हैं, ये दुरुस्त नहीं हैं। आप निकलें और उसकी वजह है कि खान को वो कहते हैं कि मारा जा रहा है और खान को मारा जा रहा है और आप मज़े लूट रहे हैं और आप कहते हैं कि जो आवाज़ बुलंद करता है, ये पहले भी हो चुका है क्योंकि पिछले दिनों एक बयानिया चलाने की कोशिश की गई कि जनाब ये बाहर बैठे हैं ना, जो यूट्यूबर्स हैं और बाहर जर्नलिस्ट जो बैठे हैं, ये इनकी वजह से सारे काम खराब हो रहे हैं। अगर ये ना हो तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। तो ये उसका जवाब हम पहले भी दे चुके हैं कि क्या 1947 से लेके आज तक और पिछले रीसेंट पास्ट में क्या उस वक़्त भी ये यूट्यूबर्स और ये डिजिटल मीडिया के लोग जो हैं, हम जैसे क्या वो काम खराब करते थे? और उस वक़्त लोगों को पे मुकदमा दर्ज किए जाते थे, तो उस वक़्त ये होता था। तो ये सूरत-ए-हाल इस वक़्त चल रही है, क्योंकि हकीकत ये है कि लोहा गर्म है, भरपूर तरीके से गर्म है। अवाम बिल्कुल नक्को-नाक हो चुके हैं। कोई एक घर ऐसा नहीं है, जो इस मौजूदा फिस्ताई रजीम का निशाना ना बना हो। और जहाँ ज़ुल्म ना हुआ हो और जहाँ पे कोई भी फ़र्द जो है, अमीर से अमीर भी अमीर जो है वो आ चुका है, मिडल क्लास बन चुका है। मिडल क्लास वाला लोअर मिडल क्लास से छलांग लगा के ख़त गुर्बत से नीचे आधी आबादी ख़त गुर्बत से नीचे है। और इस वक़्त जो सबसे बड़ा मसला है किसानों का, 65% आबादी पे ज़ुल्म हो रहा है किसानों पे। लेकिन ये पार्टी की लीडरशिप जो है, वो बिल्कुल है। तो इस पे तो एक कर्नल साहब वो कहते हैं कि कर्नल साहब के कहने पे आप सारे कर्नल साहब से बातें सुनते हैं और फिर आगे कि जनाब इमरान खान ने और वो तो जेल में है, अब हम क्या करें? तो क्या हम भी उसके साथ मर जाएँ? तो हमने तो नहीं मरना। तो भई अगर नहीं मरना तो आप सब के सब अपने पास और वो कहे कि जनाब जी हम सब मुस्ताफ़ी हो गए हैं। जैसे शफ़कत अवान साहब ने कल कहा और उन्होंने कहा जी कि रखूँगा और मैं जो है इमरान खान को भी नहीं छोड़ सकता, इमरान खान की कॉज़ को भी नहीं छोड़ सकता और पार्टी को भी नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपनी सीट वापस कर दूँ। तो इस तरीके से ये बातें होना शुरू हो गई हैं। उसकी वजह एक और भी आपको बता दूँ, फिर एक और भी इमरान खान साहब के प्लॉट का मामला था, तो वो भी सामने आया तो उन्होंने उसकी भी एक स्टेटमेंट आ चुकी है कि उन्होंने अपना ये प्लॉट जो है अपार्टमेंट सॉरी, अपार्टमेंट जो है वो डिक्लेयर भी किया हुआ था अपने असासों में और उसके बाद उस अपार्टमेंट को बेच दिया था और उसकी सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो लगा हुआ है। क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया है, जावेद हाशमी साहब भी जो हैं, वो पीटीआई के नहीं हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आज अडयाला जेल में कैद इमरान खान को उनकी बहनों से एक बार फिर नहीं मिलने दिया जा रहा। आसिम मुनीर एक फ़ाशिस्ट है और फ़ाशिस्ट अंदर से कमज़ोर और खोखला होता है। इस वक़्त मुल्क में महँगाई की शरह डबल फ़िगर में पहुँच चुकी है और इस फ़ाशिस्ट और इसके करिंदों की अव्वलीन तरजीह ये है कि बहनें अपने भाई के से ना मिल सकें। बुज़दिली, नाअहली और डर की इंतहा है। तो ये सारी चीज़ें जनाब ये सूरत-ए-हाल है। तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप को ज़रा थोड़ा-सा बहादुर बनना चाहिए और इतने वो कमज़ोर नहीं है, गिरफ्तारियों से नहीं डरना चाहिए। वरना फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो पहले सिर्फ़ डिक्टेटर थे, तो अब मज़ीद वो डिक्टेटर होते जा रहे हैं और
ان کی ڈکٹیٹرشپ جو ہے ہر روز ایک نیا روپ لے کر آتی ہے. یہ پوری رجیم جو ہے جعلی نظام ہے، جعلی نظام، الیکشن چوری کا نظام ہے، اور آپ کا مینڈیٹ ہے، عوام آپ کے ساتھ ہے، تو پھر ڈر کس چیز کا ہے؟ تو یہ ہے صورتحال جناب، یہ سچویشن ہے. اللہ خیر کرے.